From his local library, Mr. Kampamba learned how to build an energy-producing turbine for his village. So on this strength, he got admission in a leading US university. This book, this single book, not only changed his own life, but also that of his community, his own village. Such stories explain why many countries are eager to ensure that libraries continue to provide access to knowledge, learning, and ideas. So dear friends, as J.K. Rowling, the famous novelist who wrote Harry Potter series, quotes that when you are in doubt, go to the library. So, the solution to all your doubts is in the library. Happy reading to all of you. Thank you so much. Now I hand over the mic to my friend Sanjeevni. Thank you, Preksha. Good morning, everyone. Myself Sanjeevni, and I feel pleasure to extend warm greetings on this special week that we devote to libraries, which is National Library Day. We are honored to have with us Mr. Kunal Padole as the chief guest of today's program. Now I would like to request our respected principal Miss Rajashri Datta ma'am to welcome our guest by giving a token of love. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Coming from a humble background and traditional Maharashtra family, Professor Kunal Padole from his childhood was a motivated learner. After completing his MBA, he is also pursuing PhD in management from Gondwana University. He has established himself as a leading professional, businessman and philanthropist. He is the founder of Actis Technologies Private Limited, which focuses on recruitment and e-commerce. Sir is also the director of Guru Nanak Engineering Colleges Placement Association and vice president of Maharashtra Association of Training Placement Offices. He has been instrumental in providing job opportunities for 2,000 students across central India and pioneer of pool campus recruitment, job affairs and job fairs. Sir is also the founder of president of Yuva Foundation. It aims to provide employment for 1 lakh students and has received tremendous support from colleges, corporates and government alike. Sir is also the vice president of Nagpur District Bodybuilding and Fitness Association. Being a multifaceted personality, his success mantra is always to be positive and to be optimistic. Sir, we welcome you, and now it is indeed my honor to request the most honorable personality of today's program, whose lesson and motivation can bring an optimistic transition to anyone's life. So sir, I request you to please come upon the stage and share your valuable thoughts. So please. Hello, yeah. Respected Principal Madam, Vice Principal Madam, Priyanka Madam, teaching staff, non-teaching staff, and my dear lovely students. On behalf of
my community, that's its Yuva Foundation and our college. Happy. Today we are celebrating what? हम क्या celebrate कर रहे हैं आज? So what is the importance of library, guys? So आप सबको लाइब्रेरी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. And I'm really grateful to the management of Somalwar School that they have today invited me on the occasion of this fantastic week. I understand, guys, कि what is the importance of life? What is the importance of life? क्या करना चाहिए हमने? लाइफ में हमने क्या करना चाहिए? You have to be optimistic. Optimistic मतलब क्या होता है? You have to be positive. आपको किसी के भरोसे पे नहीं बैठना है. आपको भगवान के भरोसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि पता नहीं भगवान किसी और के भरोसे पे बैठे होंगे. So your life, हमको आज भी ऐसा लगता है कि काश हम फिर बच्चे होते, फिर स्कूल जाते, फिर मस्ती करते, फिर टिफिन खाते. ये जो आज का आपका पल है, इट इज मार्वलस, स्पीचलेस, और इसको एंजॉय करना है आपको. एंड एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है ही, गाइस. It is not that you read a book, pass an exam and get through it. The process from you born till you die is the process of learning. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उठना है, स्कूल जाना है, जिंदगी भर पढ़ना है और चले जाना है. हर एक पल, हर एक टाइम, हर एक वक्त, हर एक टाइम you have to enjoy and you have to learn. Have maximum participation in your all activities. I understand that Somalwars have philosophy to thorough academics. Academics तो important है, but whatever activities you are getting from your colleagues, from your faculty staff, from your teachers, you should involve thoroughly, because that will give you directly and indirectly learning. You understand that कि female education इंडिया में बहुत मुश्किल हुआ करता था, but आज students majority में भी girls ज़्यादा है. और जब आप 9-10 पास हो गए, 11-12 हो गए, जब आप इंजीनियरिंग करोगे, एकेडमिक्स जाओगे, फाइनली आप प्लेसमेंट्स की तरफ जाओगे, तो नाउ आई एम फीलिंग व्हाट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, सिलेक्शन ये लड़कियों का ज्यादा हो रहा है. सो हैप्पी न्यूज फॉर ऑल गर्ल्स कि पार्टिसिपेशन में भी लड़कियां ज्यादा है और सिलेक्शन में भी लड़कियां ज्यादा हो रही है. एंड when I was with one of the engineering college, we took the campus placement drive. आपको समझता है ना, कंपनीज आती है, कंपनीज प्लेसमेंट ड्राइव करती है, उसमें सिलेक्शन होता है, तो 70% वेयर गर्ल्स. तो बॉयज यू नीड टू कंसंट्रेट मोर ऑन स्टडीज, बिकॉज वुमेन एजुकेशन को इंडिया में बहुत डिफिकल्टी से सावित्रीबाई फुले का माप और उन्होंने ये स्त्री शिक्षण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से अपलिफ्ट किया. You understand? आज हर किसी को यहाँ पैसा कमाना है. बड़े हो गए हम घर पे ही देखते कि पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, धीरू भाई अंबानी बनना है, बिजनेस करना है. बट बिजनेस भी करना है तो क्या करना है आपको पता होना चाहिए, गाइस. अगर पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है? यहाँ से दिल्ली जाना है तो यहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, बस पकड़ना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां से आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. ये जर्नी वी नीड टू अंडरस्टैंड थॉरोली. ये प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड थॉरोली. आपको क्या अच्छा लगता है, आपका करियर किसमें सेट होना है, और सिर्फ आपकी नौकरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं जानता हूं ये सारे शब्द बड़े हैं आपके लिए भी, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक है, या 5th के नीचे भी कोई है, तो बोलेंगे बॉम्बास्टिक वर्ड्स आई एम यूजिंग. सो इट इज व्हाट कि यू हैव टू डेवलप बोथ योर करियर. किसी को आईटी प्रोफेशनल बनना है, किसी को बिजनेस ओपन करना है, तो आपको आज से ही आपका डायरेक्शन उस अपवर्ड्स में जाना चाहिए. बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है? बिजनेसमैन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मैं भी उस दिन एक वीडियो बनाया, तो बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो 10 रुपए का अनार लाया और 20 रुपए का बेचा. एक अनार खरीदा हमने और बेचा. यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज के बच्चे हैं,
उसको हम कहते हैं बिजनेसमैन। और एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? वही 10 रुपए का अनाज लाया, एक सुंदर सा आउटलेट बनाया, सुंदर सा शोरूम बनाया, 10 रुपए के 4 ग्लास बनाए, एक ग्लास 80 रुपए में बिका, 240 रुपए में उसको बेचा। तो दोस्तों बिजनेस फैमिलीज यहाँ पे बहुत सारी है, आपके यहाँ रेगुलर फैमिली के बिजनेसेस हो रहे हैं, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाउ। आपको एक कंप्लीट पिक्चर बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम में आपको लाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये सिस्टम आप डेवलप करेंगे, बिकॉज आने वाला जीवन इन कमिंग डेज यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट इनोवेशन, डिफिकल्ट इनोवेशन। हमारे जमाने में किसी ने ये नहीं सोचा था कि पानी की बोतल बिक सकती है। आज वही पानी की बोतल का मार्केट में वैल्यू 40 रुपए, 5 स्टार में वैल्यू 70 रुपए है, और एयरपोर्ट पे 120 रुपए की वैल्यू बिकती है। तो हमारा वैल्यू क्या होने वाला है? टुडे यू आर विद अ फैंटास्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर गेटिंग अ फैंटास्टिक नॉलेज बेस। तो इसमें आपका वैल्यू आपको एयरपोर्ट का बनाना है, एक सामान्य शॉप का बनाना है, या एक सुपरमार्केट का बनाना है, ये आपको अभी से समझना जरूरी है। अभी धीरे धीरे मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आने लगी है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली दोस्त, आपको बनना है तो यू नीड टू फोकस्ड ऑन जंगल का शेर, नॉट सर्कस का शेर। जंगल के शेर को रोज उठना पड़ता है, रोज भागना पड़ता है, रोज अपना शिकार चुनना पड़ता है, और फिर उसको भोजन की प्राप्ति होती है। सर्कस के शेर को सब रेडीमेड मिलता है, बराबर है कि नहीं? उसको सब रेडीमेड मिलता है, उसको खाना मिलता है, उसको रेगुलर एक्टिविटीज करती है, बढ़ती है, लेकिन वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ता जो स्टेप हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमको हमेशा जंगल का शेर बनना है। ध्यान में रखना, मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ बहुत, जो मैं हमारे कॉलेजेस के बच्चों को बोलता हूँ, बट आपको भी आज से समझना है कि हमको हर वो चीज करनी जो चीज आपको अच्छी लगती है। हर वो चीज करना इसलिए जरूरी है बिकॉज यू विल लर्न मेनी थिंग्स इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। हर वो चीज मतलब हर वो अच्छी चीज। यू हैव टू फोकस ऑन दिस गाइस। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। मतलब अगर आपको सही में कुछ अच्छा बनना, मैं आज क्यों आपको सारी भाषण दे रहा हूं, क्योंकि मैं ना रेगुलर फील करता हूं आजकल स्टूडेंट से। मेरे पास आई एम इनटू प्लेसमेंट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। मैंने आज तक कम से कम 25,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार दिया। बट हम एजुकेशन कर लेते हैं, फिर 12th कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि राइट करियर क्या होता है, राइट एजुकेशन क्या होता है। इसलिए अभी से अगर हमने राइट एजुकेशन को फोकस किया, राइट करियर को फोकस किया, तो राइट एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और कभी भी आपने कंप्लेन नहीं करना है। नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। जो अच्छा हुआ वो आपने किया, जो बुरा हुआ वो भी आप ही ने किया। तो ये समझना है। कभी पेरेंट्स से कंप्लेन मत करिए कि घर पे जाके ये मत बोलिए कि आज मेरे को खेलने नहीं दिया, मेरे को इसने डांटा, मेरे को उसने पीटा, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे को मैडम ने चिल्लाया। डोंट कंप्लेन एनीथिंग अबाउट। यू हैव टू थिंक आधा ग्लास खाली होता है और आधा ग्लास भरा होता है। तो हमको आधा ग्लास भरा है ये समझना जरूरी है। हम आज स्कूल में आ रहे हैं, हम आज सीख रहे हैं, हम आज पढ़ रहे हैं, हम सारी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी रखना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और ये आपको हमेशा रखना पड़ेगा। then only one be able to have a successful life in ahead। जुबान, जैसे मैं आपके साथ आज बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अभी nowadays तो every school and colleges having English is a basic English communication skills, लेकिन इंग्लिश पे आपका प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है गाइस। I know 100% कि आप सब इंग्लिश में बात करते हैं, बिकॉज बड़े होने के बाद अगर आपको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, तो आजकल नौकरी बिजनेस आपको इंग्लिश बोलने से ही मिलेगी। सो इंग्लिश यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डेवलप एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट। है ना, 2 साल से हम बोलना सीख जाते हैं, आप सब बोलना सीख जाते हैं, बट जिंदगी भर हमके लग जाते हैं कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल पे आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। जैसे मैंने बोला कि आप सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, हमेशा करते हो, और आपको हमेशा करते रहना है।
एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेशन, हमको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे स्कूल से, हमारे पेरेंट्स से, हर वो जगह से। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी आपको बैलेंस करना है। आपको बैलेंस, अगर आप एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करोगे, एक्सपेक्टेशन के साथ बराबर रहोगे, तो आपको जीवन में बहुत ही अच्छा धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी और आप लाइफ को अचीव करते जाओगे। यहाँ पे कितने लोग हैं जिसको इंजीनियर बनना है? रेज योर हैंड। इंजीनियरिंग में आप इंजीनियर क्यों बनना है? इंजीनियर क्यों बनना है आपको? Why you want to become engineer? अच्छा, यहाँ कितने स्टूडेंट्स इसको डॉक्टर बनना है? कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं जिनको अपने पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटाना है? अरे वाह, तो पापा के साथ बिजनेस में हाथ कैसे बटाएंगे? कैसे बटाएंगे? कैसे बताएंगे, बताइए। आपने देखा है, हमेशा हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे हर किसी के लाइफ की जीवनी पढ़ना पसंद है। यू अंडरस्टैंड दैट? बायोग्राफी पढ़ना पसंद है, लेकिन हर किसी को उसके जैसे बनने के लिए एफर्ट्स डालने वक्त बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। तो अगर आपको जीवन में कुछ सही में अच्छा करना है ना, तो ऐसे लोगों की जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के रियल टाइम एक्सपीरियंस देखते हैं, तो वैसा बनने की कोशिश हमको करना है। और हमने हमेशा एक साथ लेके चलना है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको एक साथ लेके चलना है। सारे फ्रेंड्स एक में के साथ हंसी खुशी में, किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, एक में को साथ लेके चलना, पॉजिटिव रहना, बराबर टिफिन खाना, बराबर खाली टिफिन घर लेके नहीं जाना। मेरा बच्चा जब खाली टिफिन घर लेके आता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो आपने बराबर टिफिन खाना चाहिए, एक में को साथ लेके चलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, सुबह बराबर उठना चाहिए, होमवर्क बराबर करना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड डू। दोस्तों, मस्ती करनी चाहिए, बिकॉज ये दिन कभी आपके जीवन में आएंगे नहीं। जितनी ज्यादा मस्ती करोगे, मस्ती करना चाहिए, बट यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ थॉरली। ये बैलेंस रहेगा तो बहुत अच्छा जीवन में आप प्रयास करोगे। और व्हेनेवर यू आर चूजिंग योर राइट करियर, अभी 9-10 के जितने भी बच्चे होंगे, हैव प्रॉपर काउंसलिंग। आपको जो चीज अच्छी लगती वही आपने एजुकेशन चूज करना है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने बोला आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर बनना है। Whatever things you like the best, you should go ahead on this. 11th से साइंस लेना है, पॉलिटेक्निक लेना है, फिर इंजीनियरिंग लेना है, तो इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लेना है, कौन से ब्रांच का करियर ज्यादा अच्छा है, कौन से ब्रांच में ज्यादा नौकरी अवेलेबल है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अभी आप जब भी बड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा। अभी नागपुर में HCL कंपनी है दोस्तों, 8, 9, 10 के बच्चे बता रहा हूं मैं, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम वहां पे आया हुआ है। So 11th से लेके फाइनल ईयर तक they will select you on the basis of your percentage and merits. उसमें they will give you job plus academics from BITS Pilani Goa. तो इस टाइप के करियर को you should focus now. मतलब आप तो पढ़ तो रहे हो, बट साथ में आप पैसा भी कमा रहे हो, और वो पैसे कमाने से आपको इतनी ज्यादा मैच्योरिटी आती है, नथिंग लाइक इट। तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वक्त में, हमारे करियर में हमको किसी ने कुछ समझाया नहीं। हमारे माँ बाप को जो बोलता था कि भैया अभी उसको इंग्लिश मीडियम में डालना है तो इंग्लिश मीडियम में डाल दिए, मराठी मीडियम में डालना है तो मराठी मीडियम में डाल दिए, सेमी इंग्लिश में डालना है तो सेमी इंग्लिश में डाल दिए। आजकल आपके पेरेंट्स बहुत जागरूक है, आपको काउंसलिंग करेंगे, लेकिन राइट करियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यू नो, वर्ल्ड का मैक्सिमम परसेंटेज हमारा यूथ है, और आप यूथ ही देश का भविष्य है, और ये देश का भविष्य हर एंगल से पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक से चल के होगा नहीं, स्पोर्ट्स से होकर चलना नहीं, देश के बारे में आपका प्रेम उतना ही होना चाहिए दोस्तों। सो 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, फर्स्ट डे ऑफ महाराष्ट्र में, गांधी जयंती में, यू शुड डू फैंटास्टिक प्रोग्राम। आपने चैरिटी प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके साथ आपने नहीं रहना है। ये सारी चीजें यू हैव टू फोकस्ड। माँ बाप की इज्जत करना है, माता पिताओं के साथ रहना है। पेरेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज आज पेरेंट्स बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन समझ लो जितनी भी समझ में आए। पेरेंट्स आज बहुत
मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ने भी उतनी मेहनत से पढ़ना है और बाद में बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनका केयर करना है। तो आज घर जाते बराबर सबसे पहले आप अपने मम्मी और पापा दोनों को हक करिए, भाई को हक करिए और अच्छा काम करना है। 8, 9, 10 के बच्चे जितने भी यहाँ पे HCL जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अभी नागपुर में स्टैब्लिश्ड हो रही है, जिसमें आप लर्न एंड अर्न, एकेडमिक्स के साथ साथ प्लेसमेंट्स, ये बहुत अच्छे करियर है। इसके जैसा और कोई करियर नहीं हो सकता, बिकॉज आपको यू आर गेटिंग लाइव लर्निंग। आज एकेडमिक्स में, इंजीनियरिंग में जो लाइव लर्निंग की जरूरत होती है वो बहुत कम है। तो ऐसे करियर में यू शुड ऑप्ट, यू शुड एडॉप्ट और यू शुड गो अहेड। सो आपने आज मेरे को आज यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं सोमलवार स्कूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेनी थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आप अभी 5th से लेके 8, 9 स्टैंडर्ड, हम हमेशा इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को हमेशा एड्रेस करते रहते हैं। तो आपने इतने अच्छे से सुना सारे स्टूडेंट्स ने, तो आप सबका भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग, नॉन टीचिंग सब स्टाफ है, आप सबका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया दैट आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया। मेनी थैंक्स गाइड। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है कि नहीं रहना है? मेरे बच्चे ने बोला कराया बट डोंट क्राई, रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, खेलना है, कूदना है, स्टडीज करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करना है और देश के बारे में सोचना है। सोचना नहीं बल्कि अच्छा काम कुछ ना कुछ करना है, जिसमें आपने देश का, आपका नागपुर का नाम रोशन होना है। हमारे नागपुर का, विदर्भ का, महाराष्ट्र का नाम यहाँ में से कई बच्चों ने रोशन करना चाहिए। ऐसी सोमलवार स्कूल संस्था की हमारी सबकी इच्छा है, इसलिए काम बड़ा करना है। बाकी सब तो हर कोई करता है, लेकिन यू शुड हैव फोकस ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन, हैव गुड वर्क, हैव बैलेंस लाइफ। Do not forget to care your parents. Even if you have your grandparents, care them also. Thank you very much for being a lovely audience. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts. It will be really helpful for us to bring change in our life, and we will try to inculcate these values in us. Thank you, sir. Now, our school have this thing. We have done a competition in our school. So that was the Roller State Basketball Association, which has organized 4th Roller State Basketball State Championship on 13th November 2022. In this competition, from our school, Divyam Khedikar of class 8 stood first. So I would like to invite our guest of honor to facilitate him with memento and medal. Thank you, sir. So now I would like to call our respected Vice Principal Ma'am, Mrs. Ashita Thorat Ma'am, to say a few words on this occasion. Please, ma'am. Good morning. First of all, a very big round of applause that you are sitting very quietly, a good audience and in a disciplined manner. So give a big round of applause for your own self. Now sir has told us, our guest of honor, he has told us very practical and very useful information he has shared, especially for 9th and 10th. Did you hear it? So think about it. There are so many career options, there are so many avenues where you can make an opportunity and make a career for your own self. Now today we are celebrating which week? And Preksha has already shared some information regarding the library week.
I would just like to add on it. See, we have a library in our school. So every school is having a library. Same way, even a city and a country and a state also has libraries. And they are called as state libraries, they are called as central libraries, they are called as world libraries, and they are also called as national libraries. Yes? And a library is what? In your body, which is the most important part? It is the heart. No? If your heart is not beating, will you survive? No. So same way, in a school, in any place, the library is the heart. It is the epicenter. It is the most important. It is a temple of learning. It is a center of learning where you get lot of information. You get lot of reading books. You get lot of knowledge. And just I want to like to share some information that in India, the first public library which was set up, it was set up at State Central Library of Kerala in Trivandrum. You know, Trivandrum is the capital of Kerala, and it was established in the year 1829. Which year? 1829. Same way in Kolkata, there's a huge library which is called as the National Library of India, and it was established in the year 1836, and it is one of the largest library not only in India but also in the world. And the second biggest library in Asia is the Anna Centenary Library in Chennai. So India has always been a temple of learning. You are studying in history, many writers and many travelers and many kings have ruled us. So Fa Hin was a very important Chinese traveler. आप लोग पढ़ रहे हो ना Ashoka? You know Emperor Ashoka. At this time, you find that Fa Hin, a Chinese traveler, had come, and he gave a recording. He wrote in his chronicles, he wrote in his record that Nalanda University was the most ancient university in the whole world. And it was in which year, you know? Between 300 to 850 AD. अभी हमारा कौन सा year चल रहा? 2022. So thousands of years ago, even our kings, okay, big emperors, in their kingdom, they used to have library. They used to have manuscript. और वो ज़माने में how they used to write, है ना, with the ink and with the feathers of the birds, yes, and there were many other sources by which they used to compile the manuscript, and they used to keep a record. So libraries, our children, are so important, and that library was known as the Dharmaganj in Nalanda University in Bihar near Patna. Okay. Then there are various very huge libraries in other countries of the world, like in USA, in China, in Russia, and you cannot imagine, there are more than 20 million books. 20 million, more than 40 million books are there in those libraries, and people go there, they read the books, okay, they avail the facilities of the library. Same way we have in our country also national libraries in Kolkata, in Delhi, in Hyderabad, in Chennai, and in many other places. Now these we are talking about the biggest libraries, but we also have smallest libraries also. And you know, the smallest library in India is known as, the name of that library is Kone Mera. It's public library. It is in Tamil Nadu in a place called Egmore. And it was established in the year 1896. And even you know who's Dr. Baba Saheb Ambedkar? What did he do? What did he write? The Constitution. So he also had a large collection of books. More than 50,000 books he had in his own personal library. So there are people who have their own personal libraries. They have personal collection of books, of novels, of storybooks, of journals, of many magazines, newspaper, and from there we get the information about the previous, about history, about other things. So same way in Aligarh Muslim University is also a very ancient, very old university, and it is the name of that library is Maulana Azad Library,
which has more than 14 lakh books. How many books? 14 lakhs. So, as I told you, that the heart of a school is what? It is the library. It is the epicenter. It is the area. It is a place where we get knowledge. We get so much information. So always aware. हम लोग क्या देखते हैं? Library भी period में जाकर only coming, going and doing time pass. है ना? You are not running to the library. You go from here and then you move and then 10-15 minutes are okay. You waste your time. But no, library is a place where you should run and go and avail the opportunity. See, you are a very blessed, okay, and you have a very good opportunity from having such a big and very good library in a school, well-equipped library. There are small corporation schools, sir भी बताएंगे, है ना, कि कहीं-कहीं छोटे schools में library, there are no accessibility to books. They don't have any books. When people go and donate, then they have the books to read, to get information, to get research, to add on to their research, or to add on to get more information regarding the subjects. So always take opportunity. जैसे सर ने बताया है, every thing in every field you can get an opportunity. Every day is an opportunity for you. So when we have a library, you must always take this, avail this opportunity of going and reading the books. I know many of the children, they do, and they read a lot of novels. They read a lot of story books, you know, and therefore it is. I just quote one small saying that there is no use going to school unless your final destination is the library. If you are coming to the school, you must go to the library. Even if you don't have a library period, go in the break. Avail this opportunity. Take this, grab this opportunity. Okay? And libraries, they are the backstage of success. Front stage पे कौन है? हमारे teachers हैं, है ना? They are physically explaining the lessons to you, telling so much about the topics, about the subjects. So they are in the front stage. But if you need any reference books, if you need any other additional information, then where should you go? To the library. So that is the backstage of success. And जितना आप reading करोगे, reading is the most important and most beneficial habit. आप जितना रीडिंग करोगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू व्हेन यू ग्रो अप. जब आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा. बट आई टेल यू दैट व्हेन यू गो टू द कॉलेजेस, व्हेन यू आप जब अभी छोटे हो, जब आप कॉलेज में जाओगे, तो यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स विच यू हैव टू रेफर टू मेक नोट्स. रेडीमेड नोट्स नहीं मिलते, आपको खुद को बनाने हैं नोट्स. आप सर ने बोला इंजीनियर, बहुत लोगों ने हाथ उठाया था. But then there's a lot of hard work to be done. You have to refer to 10 to 20, 15 books in each subject. So where are you going to do? You have to get it from the library and make notes. So that is why this is the importance of library. And even, you know, अगर library में ऐसी books पड़ी रहेंगी तो उनको अच्छा लगेगा. If you don't have any visitors at your place, अगर आपके घर में कोई guest नहीं आता है, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं अच्छा लगेगा ना. You want guests to come to your place, you want visitors to come to your place. So same way, even the books in the library, they are waiting for you. So even library books, they feel happy when you take them home. आप उसको टच करते हो, आप पेजेस पलटाते हो ना, you flip the pages, you read. Books also feel happy that you have a friend. Okay, the books are your most important and most precious friends. Your friends may leave, but book will not leave you. So this is the importance of library, this is the importance of reading, and this is the importance of books in your life. So happy reading to all of you. God bless you, and we thank sir for giving a very useful and practical information regarding career and how to remain focused and how to remain optimistic. Thank you so much. Thank you, ma'am, for telling us about library and book. And we indeed